Good evening, students. Today we are discussing the World Bank. International organization provide financing advices and research to developing nations to aid economic advancement. Means international organization provides financing advices. As you know, IMF also provides financing advices. World Bank has also. But its main aim is to construct financial plans and development strategies. Okay, it consists of two groups: IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. ये इसकी full form of IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. IDA, International Development Association. These are two groups which consist World Bank. Yeah, World Bank consists of these two groups. Sorry, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर्म वर्ल्ड बैंक. तो ये दो ग्रुप मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं. IBRD फॉर्म्ड इन 1944. दिस इज द मेन ईयर. IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944. ऐसे भी याद कर सकते हो, ये 4 वर्ड्स हैं तो 1944 44. ओके, दिस इज अ ट्रिक. जैसे मैं याद करती हूँ वैसे मैं आपको बता रही हूँ. द वे विच आई हैव लर्न दिस ईयर्स आई विल प्रोवाइड यू. वर्क विद कंट्रीज दैट रिसीव लोन्स फ्रॉम IDA टू एंश्योर द फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली. IBRD concentrates upon the way the countries receive the loan and whether they utilize the funds they borrow from the World Bank is utilized efficiently or not. If efficiently, then okay. Otherwise, World Bank gives a notice to these countries who borrow finance from the World Bank. I hope you will clear. IBRD constructs financial plans and development strategies for borrowing countries using banks' past experience. IBRD कंस्ट्रक्ट करता है फाइनेंशियल प्लान एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. मीन्स किस तरह से किस फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, जैसे रिसर्च में चाहिए या फिर स्पेस में चाहिए, एरोक्राफ्ट्स में चाहिए, किस फील्ड में. जैसे आजकल अब वर्ल्ड वॉर का शायद स्टार्ट हो, आई डोंट नो, बट जैसे हालात बन रहे हैं आई थिंक, तो क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं. फॉर बोरोइंग कंट्रीज यूजिंग बैंक्स पास्ट एक्सपीरियंस. अब इसमें देखो, बैंक पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स जैसे एक कंट्री, सपोज अ कंट्री ए बोरोज फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. ओके, borrows funds from World Bank. If there is a lot of poverty in this country, then World Bank gives them a loan for the decadal years. मतलब they can return loans to World Bank for decadal years, not for 10 to 15 years, not. Because World Bank को भी पता होता है इस कंट्री की हालत अच्छी नहीं है, तो इसे टाइम लगेगा रिकवरी करने में. Because World Bank also knows that country A has not a very much good condition, so it wants more time to recover the loan. Okay, now IBRD construct financial plans and development strategies for borrowing countries using bank past experience. means World Bank चेक करेगा कंट्री A की फाइनेंशियल सारी जितनी उसने बोरोइंग की है वो रिटर्न किया है या नहीं. अगर उसने रिटर्न नहीं किया, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ना हमारी, वो चेक करते हैं कि जिसने कस्टमर ने क्रेडिट पर सामान लिया था या फिर क्रेडिट पर जैसे पैसे लिए, उधार पे पैसे लिए, लोन लिया, तो क्या उसकी रिकवरी ठीक टाइम पर की या नहीं. अगर की तो अच्छी बात है, वो गुड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम में आएगा. अगर नहीं की तो इट विल बैड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम. ठीक है. इफ अ कस्टमर डज नॉट रिटर्न द लोन एट अ गिवन स्पेसिफाइड पीरियड, देन इट लीड्स टू गुड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम. इफ नॉट, इट लीड्स टू बैड क्रेडिट रेटिंग सिस्टम. तो दिस इज कॉल्ड बैंक्स पास्ट एक्सपीरियंस विद डेवलपमेंट. अब IDA, इंटरनेशनल, इसकी क्या फुल फॉर्म थी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960.
ये था 1944। आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे ये 3 वर्ड्स है ना, तो 3 2 6, 3 इंटू 2 6, तो 1960। ये this way I have learnt these years, so I am discussing with you. Branch of World Bank that provides loans to developing countries, sorry, मेरे को हमेशा आदत होती है, कभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, कभी एक ही चीज को 2 बार लिख देती हूँ, सॉरी। हाँ, branch of World Bank that provides loans to developing countries qualify for IDA loans based on measurement of their poverty. If a country A has a lot of poverty, has a very bad condition, then loans will be provided to developing countries by World Bank. Okay, first of all World Bank measure the poverty, measurement of poverty. ठीक, IDA loans are interest free. ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इंटरेस्ट भी मांगने लगे तो वो कंट्री कैसे अपना रिकवरी भी करेगी, फिर इंटरेस्ट भी देगी। ऑब्वियसली इफ वर्ल्ड बैंक wants या फिर prefer interest also, then how a country A which is suffering from the bad condition, how it recovers the loan with interest also, but there is a service charge, but इसका सर्विस चार्ज होता है। सर्विस चार्ज मीन्स मतलब जैसे अगर वर्ल्ड बैंक सही टाइम पर अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज लाइक ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन सर्विसेज, कुछ भी जल्दी जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जब उनको ज़रूरत है, तो वो उसके चार्ज रखते हैं। ठीक, तो बैंक वर्क्स क्लोजली विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, विद 3 अदर ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड बैंक। मेन है ये IBRD, IDA। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से कि कितनी इसकी या कौन कौन सी इसकी अदर ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक की। तो कौन कौन सी हैं, मेरे फ्रेंड्स को तो सब याद हो गया है, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। ओके, IFC क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस। ऑब्वियसली फाइनेंस है तो इन्वेस्टमेंट तो होगी, तो इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस टू कंट्रीज। किन कंट्रीज को? कंट्रीज दैट बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग टू कंट्रीज दैट बोरो फ्रॉम इट। नाउ प्रोवाइड्स एडवाइसेस टू गवर्नमेंट एंड मेजर बिजनेस। एडवाइसेस किस किस को प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट एंड मेजर बिजनेसेस। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स एडवाइसेस टू गवर्नमेंट एंड मेजर बिजनेसेस। फाउंडेड इन 1956, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सही बोल रही थी, कॉरपोरेशन कब फाउंड हुआ था ये? 1956। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि फाइनेंस में F आता है ना, फाइन, तो 5, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो IFC, तो 1956। नाउ IFC लेड बाय इट्स ओन बोर्ड ऑफ गवर्नर विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंट्री। IFC क्या लेड करता है? ओन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कंट्री। रिप्रेजेंटेटिव को एम्बेसडर भी कहते हैं, एम्बेसडर फ्रॉम ईच कंट्री। तो IFC लेड इट्स ओन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कंट्री। ओके, नाउ मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एस्टेब्लिश्ड इन 1988। मीगा एस्टेब्लिश्ड इन 1988। इसको मैंने कैसे किया? 4 2 8। एक और हमने ऐसे ही किया था, वो कौन सा था हमारा? IDA। मैं ऐसे ही रिवाइज करवा दूंगी सारे। आई विल रिवाइज इन दिस वे ऑल्सो। 19 क्या था हमारा? 1960। ठीक है, IDA क्या था? 1960। What is IDA? 1960। When IDA is formed 1960 and MEGA 1988। टिप्स पर रट जाएंगे सारे। ट्राइज टू डायरेक्ट FDI, ये ट्राई करता है डायरेक्ट करना FDI टू बोरोइंग कंट्रीज, बिकॉज द कंट्रीज दैट बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक आर इकोनॉमिकली वीक, अनस्टेबल। तो बाय
elevating means removing some risk of FDI, they promote investment. Okay, so tries to direct FDI to borrowing countries, because the countries that borrow from World Bank are economically weak and unstable. They are not in a good condition, so that World Bank को interest free amount या लोन देना ही पड़ता है. ठीक है. By elevating, removing some risk of FDI, they promote investment on borrowing countries. Okay. Now, ICSID. What is ICSID? ICSID stands for International Center for Settlement of Investment Dispute. ये तो बहुत खतरनाक है. It is very dangerous. बट कोई नहीं, आई से इंटरनेशनल सेंटर्स, ठीक, फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. ये लेकिन सबसे इजी है, पता है क्यों? इट इज वेरी इजी बिकॉज इसमें ना अर्बिट्रेटर आ जाता है बीच में. अर्बिट्रेटर आप सबको पता होगा क्या होता है. अर्बिट्रेटर होता है, पहले मैं हिंदी में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी देन इंग्लिश. ओके. अर्बिट्रेटर एक थर्ड पार्टी होती है. जैसे एक पार्टी हो गई हमारी ए, एक हो गई बी. ठीक है. ए ने कंपनी सेटअप की थी और बी ने क्या किया, उसमें फ्रॉड कर दिया, फैक्ट्स छुपा लिए, या फिर उसने कुछ इससे ऐसा कर दिया, छुपा दिया, या इस पे गलत वो कर दिया, इल्जाम लगा दिया. ठीक है. इसे गलत ठहरा दिया कि इसने प्रॉफिट्स की हेरा फेरी की है, मतलब सैलरी या इनकम की हेरा फेरी कर दी है कंपनी के. तो इसने इसको स्यू कर दिया कि इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया. तो अर्बिट्रेटर क्या होता है? अर्बिट्रेटर एक थर्ड पर्सन होता है जो कि इन दोनों की बात को सुनेगा, प्रॉब्लम्स इश्यूज को सुनेगा, फिर ये जो इसने इल्जाम लगाया इस पे और जो इसने इल्जाम लगाया इस पे, इसके बारे में फैक्ट्स ढूंढेगा. क्या सच्चाई है कि क्या ए सही बोल रहा है या बी सही बोल रहा है. अगर ए सही बोल रहा है तो वो उसके पक्ष में आंसर, मतलब फाइनल डिसीजन जाएगा, ये निर्दोष साबित हो जाएगा. ठीक है. अगर ये कातिल निकलता है, कातिल नहीं सॉरी, अगर ये चोर निकलता है तो फिर इसको सजा होगी. लेकिन ये बात, मामला कोर्ट में नहीं जाता, ये मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा. अर्बिट्रेटर इसको सब डिस्प्यूट को हैंडल कर लेगा. तो ये होता है अर्बिट्रेटर, एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करना. अब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी. नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. सपोज एक इज अ पर्सन हु एस्टेब्लिश द कंपनी. ओके. बी इज अ पार्टनर ऑफ हिम. बी hides the facts and misrepresented the facts, and he say that he is the liar. तो A sues B, A ने sue किया B को. तो he appoints arbitrator, a third person. He will listen both of the parties. What is the problem? What is the issue? Then he finds the facts and findings. He will find the true क्या फैक्ट्स हैं, क्या इसकी सच्चाई है. ठीक है. वो फाइंड करेगा क्या सच्चाई है. देन ही विल मेक अ फाइनल डिसीजन, और वो डिसीजन दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा. दैट डिसीजन विल बी अप्रूव्ड बाय बोथ पार्टीज. तो ये होता है अर्बिट्रेटर. तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बता दिया ICSID के बारे में. आई विल एक्सप्लेन द ICSID इन दिस स्टोरी. तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इट वर्क्स क्लोजली विद द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन एंड बोरोइंग कंट्रीज. इट्स पर्पस इज टू अर्बिट्रेट, आ गया ना अर्बिट्रेट डिस्प्यूट्स दैट अराइज एज अ रिजल्ट. जो क्या करता है, एज अ रिजल्ट अराइज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज. ठीक है. अगर इसने इन्वेस्टमेंट किया बी कंट्री में और इसके साथ फ्रॉड हो गया ए के साथ, तो ऑब्वियसली ही अपॉइंट्स अ अर्बिट्रेटर. सपोज ए कंट्री इन्वेस्ट इन बी कंट्री एंड ए फाउंड दैट देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स.
then he will appoint the arbitrator. Okay, so its purpose is to arbitrate disputes that arise as a result of a foreign investment in countries that borrows from the World Bank. It provides a forum of the parties to discuss the problem. ये क्या प्रोवाइड करता है? फोरम. फोरम मतलब मैंने आपको पिछले में भी बताया था ना, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो ये ऐसे ऐसे फोरम्स बनाते हैं ताकि इनके जो भी डिस्प्यूट्स है ना उस फोरम में सॉल्व हो जाए. I will explain earlier that forum is the Bureau for Indian Standard and FSF. So they will provide the facility to dispute handling. ठीक है, it is the place where disputes are handled and removed between the parties. Okay, so it provides a forum for parties to discuss problem that is removed from the possibly biased मतलब जो बहुत ही ज्यादा इनके पास सबूत था कि हाँ हमारे साथ पक्षपात हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि हटाई जाती हैं. मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इंडिविजुअल कंट्री के साथ, तो उसको वो क्या करेगा फोरम, ऑब्वियसली उसको वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा प्रॉब्लम्स को और उन पक्षपातों को हटाएगा. दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी, दोनों कंट्रीज की, और जो सच निकलेगा और आपको पता है फाइनल रिजल्ट उन्हीं के उसमें होगा, उन्हीं के फेवर में होगा. तो पॉसिबली बियास्ड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में. ओके, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा. कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.